کیا ہو گیا؟ ارمان کی یاد آ رہی ہے؟ چلو چپ ہو جاؤ. دکھاؤ تو. بیٹھے بیٹھے ہی ارمان کی ریل دیکھ رہی ہوں میں. کون سی دیکھ لی؟ تم موبائل چلاتے چلاتے رونے لگ گئی. میرے پیچھے پھرتا رہے یار. بھائی ہٹ جا ذرا, بہت دیر کو مجھے کہیں جانا دے گا. چلو چپ ہو جاؤ. اب جتنا ٹائم ہے جب اتنے ٹائم بعد تو آئے گا ہی جو ٹائم دے رکھا ہے. ہیلو دوستوں, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں آج بات کرنے والی ہوں ارمان پہ, عاطیہ پہ, ماہین پہ. یہ کچھ پوائنٹ میں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. اگر آپ کو میرے پوائنٹ صحیح لگے, میری بات صحیح لگے تو مجھے کمنٹ کر کے بتانا. اپنی بھی اس کمنٹ میں کیا آپ کی کیا اس بارے میں تھنکنگ ہے, کیا رائے ہے, آپ ضرور بتانا. دیکھو, آج ہم نے ارمان کی ممی کو اس طریقے سے روتے ہوئے دیکھا. پہلی بات تو انہیں اس طریقے سے روتے ہوئے دیکھ کے میرا دل بھی بہت دکھا, مجھے خود کو رونا آ گیا. آپ سب نے بھی یہ ویڈیو دیکھی کہ آپ سب کا ایموشنل مجھے میسج بھی آئے جو میں نے شارٹ ڈالی, اس پہ بہت دعاؤں کے سب پریشان ہے, سب رونے کا کر رہے ہیں سب ہے. ارمان کی ممی بیٹھی ہوئی ریل دیکھ رہی تھی اور بچے کی ریل آ گئی تو ارمان کی اسے یاد کر کے جس قدر وہ روئی ہے, مطلب بس پوچھو مت. اللہ کسی بھی ماں کے ساتھ ایسا دن نہ آئے, کسی بھی ماں کو ایسا دن نہ دیکھنے ملے. کیونکہ آج ہمارے بھی بچے, ہم ایسے کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, ہم نہ ارمان کی ممی سے ملے نہ ارمان سے ملے, لیکن ایک ٹچ ہو گیا ہمارا. ہم ان کو یوٹیوب پہ دیکھتے تھے, ہم روز دیکھتے تھے, ان کی لائف کے بارے میں ہمیں سب پتا ہے. تو ایک ان سے ہم کو ٹچ ہو گیا, ایموشنل ٹچ ہو گئے. پھر ان کے ساتھ ایسا ہو رہا تو ہم سب کا بھی دل دکھتا, کیونکہ ہمارے بھی کل بچے, ہمیں ڈر ہے کہیں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو اس بارے میں آج وہ بچے کو دیکھ کتنا روئی کہ اس کا بچہ اتنے ٹائم سے جیل میں بند ہے, پریشان ہے. ارمان نے تو مطلب اپنی زندگی میں مطلب 6 سال سے یہ بلاگ کر رہا ہے, یا اس سے پہلے بچہ ہی تھا, اس کی زیادہ عمر بھی نہیں ہے. تب سے اس نے یہ بات تو کبھی سوچی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی وقت آئے گا کبھی. مطلب اچھے خوشی خوشی ویڈیو بناتے تھے, خوشی رہتے تھے, ممی پاپا بہن بھائی یہی اس کا کانٹیکٹ ہوتا تھا. گھر جانا آنا, کھانا پینا, پھرنے گھومنے, یہی ہوتا تھا. ہم شروع سے دیکھتے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج اس کے بعد ایسی مصیبت آ گئی ہے. چلو یہ تو گھر والے روک کے دل ہلکا کر رہے, بتا رہے. وہ کس کو بتانے جائے ارمان کس کو بتانے جائے, وہ اندر جیل میں کتنا پریشان ہو رہا ہوگا, کہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا کہ میں کب نکلوں گا. اس ویڈیو میں آپ نے ایک بات نوٹ کی, ماہین نے کہا کہ جتنے دن جتنا ٹائم ہم کو دیا ہے اتنا تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اس کا مطلب ان کو ٹائم مل گیا کہ ارمان 1 مہینے بعد, مطلب 1 مہینے بعد اس کو بیل ملے کچھ, کیونکہ اس کے پاس کیس ہی ایسے لگے. 15 دن تو ہو گئے, ہو سکتا ہے مہینے بعد. میں تو یہی زیادہ دن نہیں گنا سکتی ہوں, میں زیادہ دن نہیں بولوں کہ 6 مہینے کے سال بھر, کیوں کسی کے بچے کے لیے بولنا. میں چاہتی ہوں اللہ ہے انشاءاللہ, آپ سب بھی دعا کرو. اگر 15-20 دن تو اس کو ہو ہی گئے, مہینے بعد اگر اس کو دیا ہوگا آپ کو مہینے کے بعد بیل ملے گی, کچھ اس بچے کو مل جائے اور وہ اپنے گھر پہ آئے, سکون ملے اس کو. اتنے ٹائم وہ جیل میں, نہ کچھ اس کے پاس فون, نہ کچھ بھی, مطلب جیل کا تو جو جاتے ہیں ان کو پتا. ہم نے تو ٹی ویوں میں دیکھ رکھا, فلموں میں جو ٹی وی میں دیکھتے تھے, فلم آتی تھی, ایسی جیل ہوتی ویسی ہوتی ہے. جو جاتے ہیں, جن پہ بیتتی ہے وہ جانتے ہیں. دیکھو ارمان کی بہن کا بھی یہی کہنا, ماہین کا, کہ اگر کوئی کچھ غلطی کر کے گیا ہوتا, کچھ جرم کر کے گیا ہوتا, تو ہمیں تھوڑا صبر بھی رہتا کہ چلو اس نے گناہ کیا ہے تو اس کو اس کی سزا تو ملے گی, صحیح مل رہی, کیونکہ اس نے یہ گناہ کیا. لیکن وہ بے گناہ ہے, اس کو سزا مل رہی, اس کی وجہ سے وہ زیادہ دل دکھ رہا ہے. لیکن کوئی نہ, اللہ پہ چھوڑا ہم نے, اللہ دیکھ رہا, اللہ حساب لے گا, بالکل اللہ حساب لے گا. کیونکہ کسی بے گناہ کو پھنسانا بہت ہی غلط بات ہے. بات کر رہے ہیں ہم عاطیہ کی. کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ عاطیہ کا ساتھ نہیں دے رہے ہو, لڑکیوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہو. ویسے تو میرے
मैं जो वीडियो बनाती हूँ माशाल्लाह उसमें कमेंट सभी अरमान के सपोर्ट में आती है। मेरे को ऐसे कोई गलत कमेंट नहीं आती, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं आतिया को भी गलत नहीं बोल रही। मैं सिर्फ उसने जो अरमान के साथ गलत किया वो गलत तो बोलना बनता है, हमारे आंखों के सामने हुआ ना, हम आतिया को कोई इल्जाम लगा रहे। लेकिन एक दो कुछ कमेंट ऐसा है कि जो औरतें साथ अरमान का दे रही हैं वो मैंने कहीं पढ़े थे, वो है मतलब उनकी भी बेटियों के साथ ऐसा हो, उनके वो भी बेटियां ऐसी के साथ हो। बिल्कुल, अगर जो लड़की है जो औरतें, इसमें तो आदमी भी है, लड़कियां औरतों की बात ही नहीं है। जो भी अरमान का साथ दे रहे अगर उनकी बेटियों के साथ ऐसा हो, लेकिन उनकी बेटियों के साथ कब हो, जब उनकी बेटियां किसी को 10 आइडिया दे के बदल दे, चेंज करके उसको फंसाए, उसके पीछे ही पड़ जाए, उसको शादी का बोले, छोटी 17 साल की रहे और उनको लड़के को फंसाए करे। ऐसे हर कोई नहीं होती, हर कोई अपनी बेटी को इतना फ्रीडम नहीं देता, इतना इंस्टाग्राम आईडी ऐसे बदल के नहीं करता। आजकल का माहौल अलग हो गया, बच्चे बड़े तेज हो गए, हम जानते हैं। लेकिन अगर उनकी भी बेटियां ऐसी करें तो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, जाहिर सी बात है। ऐसे ही लोग सपोर्ट करेंगे। अब हम आतिया को सपोर्ट करें क्योंकि सिर्फ वो लड़की इसलिए सपोर्ट करें, भले उसने गलत किया। आजकल लड़कियां कितना गलत कर रही हैं, सब लड़कियां अपनी लड़कियों का नाम का बदनाम, जो इज्जत से बेचारी बैठी है, जो इंतजार करती है फैसले का, उनके साथ तो कुछ होता ही नहीं। और ऐसी लड़कियों के लिए सभी लड़कियां बदनाम हो जाती है। देखो कितने केस आ गए हमारे सामने, सब औरतों ने ही किए। बेचारा मर्द तो इतना भोला होता है, सभी औरतों ने किया। नीला ड्रम में मार के फेंक दिया, टाइल्स में दफना देती हैं, किचन की टाइल्स बाथरूम की टाइल्स पहाड़ों से धक्का दे देती हैं। अरे इतना कर रही है, लड़कियों का ही सुनने मारा। खाना मांग लेता वती तो उसको उसको कुहाड़े से मार देती है। ऐसी औरतें, ऐसा हो गया इन औरतों की वजह से औरत के नाम से डरने लगे लोग। बेचारे बच्चे तो दूसरी शादी करने, एक शादी करते सब दूसरी क्या पहली शादी करने से ही डर रहे कि हमारा क्या होगा। समझ रहे आप। अब भी ये अरमान वाले केस में भी आतिया को ऐसा क्या है, तब लोग और माँ बाप भी कुछ डरने लग गए। माँ बाप भी यही डर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो, हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो, हमें अच्छी लड़की देख देखा के करनी पड़े, ढूंढनी पड़ेगी। या बच्चा अगर किसी लड़की के साथ फंस भी गया, यानी पसंद करता है, फंसना नहीं, पसंद करता है, तो वो भी उसका भी पूरा खानदान, उसका भी बायोडाटा निकाल कर ही शादी करनी पड़ेगी होगी। ये तो बच्चे को समझाना होगा कि बेटा ये नहीं करना है, क्योंकि आजकल इतने केस आ रहे हैं सामने। तो आप समझो आतिया का हम साथ देते, अगर आतिया भी सच होती। पहली बात तो आतिया ने हर वीडियो में जितनी अरमान ने बनवाई उसमें इसने इसके माँ बाप की बुराई की, पैसों की बात की। इसने बोला मैंने आइडिया बदली, मैं अरमान को पीछे थी, मेरे को अरमान का जुनून हो गया था, मैं अरमान के प्यार में पड़ गई थी, मैं अरमान से बहुत मोहब्बत करती थी। तो मेरा कहना है ये सब आतिया के ही वर्ड है, आतिया ने ही वीडियो में बोला, हमने तो कुछ अपनी मर्जी से नहीं बोला। आप सबने ये वीडियो देखी है। तो अरमान के प्यार में जब आप इतनी गिर चुकी थी, मदहोश हो गई थी, पागल हो गई थी, तो इतने 2-3 महीने में ऐसा क्या हो गया जब का प्यार का बोध ही खत्म हो गया? आपने 17 साल में शादी कर ली, एक तो जिद में। प्यार करती थी तो प्यार इतनी जल्दी थोड़ी खत्म होता है। प्यार तो हमेशा चलता है, प्यार में तो कितनी कुर्बानी देनी पड़ती, कितना बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाके प्यार हमें हासिल होता है। जब तुम्हें प्यार हासिल हो गया था तो तुमसे इतना बर्दाश्त किया। तुमने बोला था अपनी वीडियो में कि वो बोलते हैं तुम्हारा पहनावा सही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा पहनावा नहीं है, मैं वेस्टर्न पहनती हूँ, हम तो शुरू से ऐसे ही पहनते हैं, अब इनको पसंद नहीं है, ये मुझे रोकते हैं। तुमको तो अरमान सब जगह घुमाने ले गया था, हमने देखा था जीन्स टी शर्ट और तुमने पहने। तुम तो कभी भी उनके ससुराल में, तुम अपने ससुराल में सर पे दुपट्टा भी तुम्हारे एक आध बार देखा होगा मैंने, रखती ही नहीं थी सास ससुर। अरे चलो सास के सामने कभी गिर जाए दुपट्टा, लेकिन ससुर चाचा ससुर जो आते थे, वो चाची सर जो मेहमान आते उनके सामने भी तुम बाल खुले, गले में दुपट्टा, ऐसे ही तो फिरती थी। तुमको हमने वीडियो में देखा, तुम बोलती तुम्हें रोकते थे, बस तुमको इतना बोल दिया शोहर ने तो तुम उसको छोड़ के आ गई। तुम्हारा दम घुटने लग गया, तुम्हारा दम इतने, तुम्हारी खुशी, तुमको पता चल गई कि ये मुझे ऐसे नहीं रहने दे रहा ऐसे। अरे शौहर के साथ जब तुम्हारी सच्ची मोहब्बत थी तो तुम उसके साथ कैसे भी निभा सकते हैं। अरे गरीबी में लोग तो निभा लेते हैं, तुम तो इतना घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी। जो सच्ची मोहब्बत वाले हैं ना, वो अपने शौहर के साथ गरीबी में भी जिंदगी बिता लेते हैं, समझिए आप। ऐसा मत बोलो कि आपने, मैं तो मेरा दम घुटने लग गया था, गाँव में भी मैं परेशान हो गई थी वो। अरे शोहर के साथ गाँव में भी जाना पड़ा और जन्नत में भी जाना पड़ा तो जा सकते हैं। एक बात है, जहाँ पे अपने शोहर के साथ उसकी जिंदगी गाँव में, बहुत गरीब के साथ कैसे रह रही है औरतें गाँव में, ये बताइए आप। गाँव में रहती है, उनके साथ खेती करती है, तो वो औरतें कितनी वो होंगी।
और आपने इतना सा होके बात होके कि तुम उसको छोड़ के चली गई। मोहब्बत इसे नहीं कहते। अगर एक तरफा है, तुम बोल रही मेरी तरह की मोहब्बत थी तो तुम निभा लेती ना। तुमने तो मोहब्बत को निभाई नहीं। तुम उसकी मजाक बना रही हो। मेरे को तो कमेंट आया कि मैं 5 मिलियन वाले से शादी करती ना की, ऐसे ऐसे करके तुम हंस रही हो। ये अच्छी बात है? जब तुम ऐसा था तो तुमने उसके पीछे इतनी आइडिया बना के उसके पीछे क्यों पड़ी थी? तुम इतनी आइडिया बनाती ही मत, उसके पीछे जाती ही मत तुम। अगर वैसा ही था, अब तुम्हें 5 मिलियन वाला चाहिए। 5 मिलियन वाला कहाँ मिल जाएगा तुम्हें? ऐसी मोहब्बत नहीं होती। शोहर को तुम, अगर शोहर की तो कितनी इज्जत करनी पड़ती है। किसी के सामने मतलब कोई बुरा भी बोल दे ना तो बर्दाश्त नहीं होता। जो इज्जत से घर से औरतें रहती हैं वो अपने शोहर के बारे में नहीं, उसकी इज्जत तो अपनी इज्जत। तुमने आज उसकी इज्जत ही नीलाम कर दी। तुमने उसको इतना दे जेल के अंदर डाल दिया ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर। शादी तुमने की थी, तुम क्यों झूठे इल्जाम लगा रही? एक नाबालिग को फंसा कर उसने शादी कर ली, उसने ये कर लिया, ये गलत बात है। अभी भी तुम अपना समझदारी करो। अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, तुम अपना केस ले लो वापस, उसको छोड़ दो, उसके माँ बाप को छोड़ दो, उनको उनके उनके हाल पे छोड़ दो। तुम डिवोर्स ले लो, तुम अपने घर छोड़ दो, बस खत्म बात। इस बात को इतनी क्यों बना रही हो तुम? ये बताओ। मैं आपको आप लोग बताओ, मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं? तुम भाई पैसे लेना हो पैसे लो, केस पैसे तो आएगा ऐसे ही केस मामला, लेकिन उसको पैसे लेके भी तुम छोड़ो, वो उसकी जिंदगी को बख्श दो, उसके घर वालों को बख्श दो। तुम डिवोर्स लो सीधे सिंपल, और अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जैसे वो लॉगिंग करता था वैसे ही वो करेगा। देखो ये बात तो कि अरमान के अपने माइंड के बारे में एक बात करना चाहूंगी। कुछ लोग माइंड को भी कंपेयर कर रहे हैं कि माइन भी तो अपने शोहर को लेके आई है। कुछ लोग कि कितने वीडियो बनाते हैं, करते हैं, गलत बोलते हैं कि माइन ने। देखो माइन का मामला अलग था, माइन का अलग सिचुएशन थी, और ये अलग है। माइन के घर में वो क्या हुआ ससुराल में, जो माइन के और इनके मुंह से सुना, उनके ससुराल वालों को कुछ भी इस बारे में नहीं आया। तो दो तरफा हमें नहीं बात मालूम है, लेकिन माइन ने कहा कि हमें निकाल दिया घर से, इसके बेटे को भी उन्होंने निकाल दिया कि हम नहीं आए। और इनका माइन का सोर्स हाथ में आया, अरमान को जेल भेजा है। यहाँ आतिया ने अरमान को जेल भेजा अपने शोहर को, और वो आके अपना घर बसाया। अगर आतिया भी ऐसे लेके अरमान को जाती तो फिर समझ में आता। आप लोग कहते हैं कि बोलते हैं कि माइन अपने लेके आई ससुराल में, तो वो भी लेके चली गई ससुराल में। ऐसा भी होता है, चलो खुश रहते हैं दोनों, बात आती है समझने में। माइन का अलग था और इसका अलग था, तो इस बारे में बात करने से कोई मतलब ही नहीं है अपनों को कि माहिन की वजह से हुआ या माहिन की शादी के बाद हुआ। देखो वो तो किस्मत में, तो अगर ये शादी हो भी जाती तो दोनों जो आमने सामने होता है ना, दो रिश्तेदार में हम शादी अगर करते हैं तो वो नहीं चलती। एक किसी का घर तो टूटता ही टूटता है, वो मतलब करना ही नहीं चाहिए। अब वो उसमें अरमान को भुगतना पड़ा। माहिन की शादी हो गई, इनकी बनी नहीं, और इनकी बहनें थी जो तो सगी बहनें, एक ही माँ की बेटियां थी, फिर भी इनकी नहीं बनी। अब इनके बीच में क्या हुआ, ये बहनें कभी ये आगे आके सॉल्व भी कर लें पता नहीं। लेकिन माहिन के ससुराल वालों ने कभी भी कुछ भी वीडियो नहीं, तो वो भी चाहते हैं। अरमान की मम्मी ने इन्होंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो भी अगर चाहते अपनी बात रखना चाहते तो वो कुछ भी वीडियो पर्दे में भी आके कि भाई हम ये जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ जवाब दिया नहीं था। तो वो बहनों की मामला और ये मामला अलग था। इसको तो बच्चे को केस में फंसा गया है, इसको कोई कर लेके नहीं। माहिन आई थी तो इतनी बड़ी कोई वो भी नहीं बात हुई जितनी अरमान की चली, क्योंकि अरमान को जेल में गया है, अरमान को झूठे केसों में फंसाया। उसकी मम्मी ने यही बोला है कि मेरे बच्चे को दुआ करो आप लोग, मेरा बच्चा बस बच जाए। सच सच सामने जरूर आएगा, जब सच सामने आएगा तो आप साथ देना कि किसका क्या। वो भी खुद बोलने से डर रहे हैं, कुछ बात नहीं बता रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं आप उनकी भी वीडियो डालो। जब उनकी मम्मी ने बोला था हमारे पास वीडियो, रोज एक वीडियो डालूंगी, तो भाई उनका बेटा अभी तो जेल में है, अभी तो वो कुछ बोलने के लिए नहीं रहे, तो वो वीडियो कहाँ से डालेंगे? तो समझो, दोनों फैमिली को समझना चाहिए। आतिया की फैमिली को भी समझना चाहिए। अगर आतिया ना समझे, जब आतिया ना समझे तो माँ बाप तो समझदार है, उन्होंने ही आगे रह के करवाया ये सब। तो समझ जाओ, जो भी है केस को फाइनल कर लो। किसी का बच्चा है तुम उसको बख्श दो, रहम करो, खुदा से डरो। इंसानों से नहीं डरो तो खुदा से तो डरो, कि वहां तो फैसला होगा ना सच झूठ का। तो उनसे डरो और अरमान को बख्श दो। अब आप लोगों ने मेरी सारी बातें सुन ली, आपको मेरी वीडियो, मेरी बातें कैसी लगी है? क्या इस बातों में आपको कितना क्या सच झूठ लगा है? इस बातों में आप क्या कहना चाहते हो? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।